हेलो नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज संदीप। नमस्कार, मेरा नाम मोहन। गाइस मेरा नाम निवेश है। नमस्कार दोस्तों, मैं बारिक भाई रिएक्ट चैनल में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। वी हैव समथिंग रियली इम्पोर्टेंट टू सी फॉर आवरसेल्फ, हमें अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी हम लोग इस वीडियो पे देख के अपना रिएक्शन देने वाले हैं। ये है एमर्जिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान में हो रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कुछ दिखाया गया है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या होगा ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो ये वीडियो में हमें दिखाई देगा कि हाउ पाकिस्तान हैव ग्रोन इन लास्ट 70 ईयर्स। 70 साल में पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया है। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस वीडियो को। नाम सुनते ही मैंने बोला सूरज भाई इसको तो देखना चाहिए कि अभी तक हम लोग ने सेगमेंट में पाकिस्तान को देखा है, ये एक कम्प्लीटली एक पैकेज में हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि हमें कैसा लगा। तो चले देखने के लिए सूरज भाई। बिल्कुल चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको एंड पे बताएंगे कि हमें कैसा लगा ये वीडियो। आइए। Pakistan, the land of 1,000 opportunities. Along with its rapidly growing economy and bustling heritage sites, it is home to a number of languages and cultures, as well as being the host to all 4 seasons and possessing a variety of terrains. Blessed with natural and historical riches, Pakistan's breathtaking destinations include magnanimous mountain ranges, rolling lush plateaus, all dotted with an abundance of pine trees and crystal clear waters to the north. Desolate, yet alluring and expansive deserts towards the south. In between both extremes, it hosts countless mausoleums, mosques, gardens and lakes. Pakistan's agricultural sector has boosted the country's economy and continues to achieve high numbers of employment. Acres of fertile land, favorable weather conditions, and abundance of rain and rivers are further enhanced with a strong canal irrigation network. The country's manufacturing sector is thriving, with cotton, textile and apparels being the largest industries. Pakistan is predicted to be the world's fastest growing Muslim economy in 2017.
Pakistan is also known for its manufacturing of sports goods, which are used by professional teams in tournaments in various countries, including the FIFA World Cup. The China-Pakistan Economic Corridor is an initiative taken by both neighboring countries to explore investment and bilateral trade. It will link the Gwadar port to the Chinese province of Xinjiang and will act as a game changer not only for Pakistan but for global trade as well. There is constant development in the infrastructure across the country. There are 4 motorways connecting city to city, with 8 more under construction. The Lahore Transport Company, in collaboration with Turkey, also launched the metro bus service in 2013. As a country that is just 70 years of age, we have overcome many obstacles in our way. We have done wonders internationally in all sectors. The growth of our infrastructure and incentivized investment policy initiatives are leading to a continuous emerging Pakistan. तो इमर्जिंग पाकिस्तान ये जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी, हम तो ऐसे तो बहुत सारे ब्लॉग्स पे, बहुत सारे जगहों पे, मतलब पाकिस्तान की एक एक चीज़ इतना खूबसूरत है कि उस पे तो बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्री बन सकते हैं. लेकिन इन जनरल ये वीडियो का पर्पज़ है, मुझे लग रहा है, जो मुझे लगा कि वो है कि पाकिस्तान एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी. अभी तक हम लोग ने जितना वीडियो देखा सूरज भाई, लाइक वी हैव सीन इन अ सेगमेंट कि कैसे मतलब पाकिस्तान के एक सिटी में क्या क्या है और लाइक हाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट और किसके नेचुरल क्या क्या ब्यूटीज़ हैं उस जगहों पे. लेकिन ये जो इमर्जिंग पाकिस्तान है, इट हैव शोन इन ऑल टुगेदर एक पूरा कंट्री अपने में कैसे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है. क्योंकि सर आगे अभी से लेकर सिचुएशन भी ऐसा है कि इफ़ यू रियली वांटेड टू बीट द वर्ल्ड, कि जो वॉर होने वाला है ना, वो वॉर गोली बारूद से नहीं होने वाला. ये वॉर होगा नॉलेज से, ये वॉर होगा डेवलपमेंट से. जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कंट्री सिंस 70 ईयर्स हुआ है इसकी बर्थ को, बट इन 70 ईयर्स इन्होंने बहुत डेवलप किया है. दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि उन्होंने दे बिल्ड अप वेरी गुड रोड्स ऑल ओवर द सिटीज़, ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो सके. ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो आपकी चीज़ें जल्दी पहुंच सकती हैं, चीज़ें पहुंचेंगी, आपका चीज़ें सस्ते होंगे लोगों के लिए. फिर दे हैव वर्कड ऑन देयर इंडस्ट्रीज़, जैसे कि कॉटन्स पे वो काम कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे काम कर रहे हैं, है ना. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है सर कि अगर आपको कल वर्ल्ड के साथ फाइट करना है, अगर आपको compete करना है, देन यू हैव टू बी ए सेल्फ सेटिस्फाइड कंट्री. अब वो ज़माना गया कि आप किसी पे भरोसा या किसी के ऊपर कंधा रख के या हाथ रख के आप सर्वाइव कर पाएंगे. ये बहुत ज़रूरी है अभी कि यू हैव टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड. इस ज़माने में कोई किसी का दोस्त नहीं है, मैं तो सीधा बोलता हूँ. और पाकिस्तान इज़ डूइंग ग्रेट इन दिस टर्म्स. आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी. देखो कंपटीशन होना है ना, तो पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, मेडिकल पे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, जॉब्स पे होने चाहिए. मतलब देयर शुड बी अ पॉजिटिविटी. मैं इस बात पे ये बताना चाहूँगा, देखिए पाकिस्तान बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट कंट्री होने के सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं. देखिए छोटा सा एग्जांपल लूँगा, जैसे मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, तो नेपाल इज़ बेसिकली अ लैंड लॉक कंट्री. कभी कभी अपने चाहने से कुछ नहीं होता. हालांकि नेपाल प्रयास कर रहा है सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, उस दिशा पे आगे काम कर रहा है, लेकिन है तो लैंड लॉक कंट्री. सो इट डजंट हैव एनी सी वेज. बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे पेरेनियल रिवर्स हैं वहाँ पे, लेकिन अगर सी अगर आपके पास ना हो तो बहुत सारी चीज़ जो सी वेज से आती थी और जो एट प्रेजेंट हमको, जैसे गल्फ से ऑयल हो गया, लुब्रिकेशंस हो गया, ये सारी चीज़ जो नेपाल में अभी नहीं है. पाकिस्तान के पास तो समंदर भी है, पहाड़ है, झरने, एवरीथिंग, बहुत सारे कोल माइंस जो उसको चाहिए. इनफैक्ट दे कैन गिव अ लॉट टू द वर्ल्ड. दे आर वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी, यू नो. और दे आर, हमने स्पोर्ट्स का भी देखा. हाँ, आपको मैं बताता हूँ, स्पोर्ट्स में जितने भी क्रिकेट्स के बॉल है ना, वो सब
जो भी इंटरनेशनल गेम्स, बेस्ट क्रिकेट बॉल इन द वर्ल्ड जो है पाकिस्तान में बनता है। फुटबॉल के फीफा के फुटबॉल्स वहाँ बनते हैं। आपको ये टेनिस के जो वो होते हैं ना, आपके जितने भी टॉवल्स होते हैं ना, सब वहाँ से जाते हैं। जो मेन टेनिस का गेम होता है, जितने भी उसके ऑफिशियल टॉवल्स होते हैं सब पाकिस्तान से बन के जाते हैं। मैंने सुना वहाँ का लेदर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिलीव करें, अगर इंडिया पाकिस्तान एक बिजनेस रिलेशनशिप पे आ जाए, इन दोनों के बीच में ट्रेड बहुत अच्छा हो जाए, यानी कि तो ये दोनों कंट्री के पास इतना कुछ है कि इनको किसी दुनिया में किसी के ऊपर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन सेटिस्फाइड ईच अदर्स नीड सो मच, एक दूसरे के इतने, क्योंकि हम दोनों एकदम एक जैसे हैं। हम एक दूसरे को इतना हेल्प कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए इतना अच्छी तरह से स्ट्रांगली स्टैंड हो सकते हैं ना, कि हमें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी कैन बीट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड जॉब्स। लेकिन जस्ट हम लोगों के भेदभाव भी है, जिसके लिए लोग तीसरा कंट्री हमें यूज़ करते हैं, और हमें शायद बांट के ही उनकी दुकानें चल रही हैं। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। अब मुझे भी यही लगता है कि अब बुलेट पावर से भी ज़्यादा काम हमारा वॉलेट पावर ही करेगा। इंडिया पाकिस्तान पे अगर वार होना चाहे हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि वार हो, तो अगर वो वार हो तो वो क्रिकेट के मैदान पे हो, क्रिकेट में हो, खेल में हो, एजुकेशन में हो, लेकिन बॉर्डर पे कभी ऐसा वार ना हो। एक वार मतलब इसको एक गलत आप मतलब नहीं निकालिएगा, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। अब हमारा वार होना चाहिए पॉवर्टी के खिलाफ, हमारा वार होना चाहिए इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के खिलाफ, है ना। और ऐसा हम लोग वार करेंगे तो ये वार हमें पहले तो अपने ही कंट्री में शुरू करना पड़ेगा, अगेंस्ट पॉवर्टी, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस जो हमें हमारे डेवलपमेंट को रोकता है। तो यही कहना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा वीडियो लगा हमको, और ऐसे वीडियोस और भी बनने चाहिए ताकि दुनिया वाले देखें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। बहुत अच्छी बात बोले सूरज भाई। तो दोस्तों, इसी हमारे छोटे से रिएक्शंस के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार जी।